Hello students, today we are going to learn lesson number 4, Atmosphere, Weather and Climate, part 5. In previous period of this lesson, we learnt about wind. Okay, so you all must have seen wind at work, the drifting of smoke from the chimneys, fluttering of flags, rustling of leaves, and moving of branches with the breeze are common sights on a stormy day. Okay, when the wind is strong, your umbrella may be upturned inside out, trees may sway, and in extreme weather, trees may be uprooted and houses damaged. Right? So, winds are moving currents of air. They can blow over a small local area or over much larger regions. Global winds helps to moderate temperature throughout the world by carrying warm air away from the tropics and cold air from the poles. Depending on their characteristics, they can be divided into four types. First, prevailing winds are permanent winds, second seasonal winds, third local winds and fourth destructive winds. ओके, तो स्टूडेंट्स आपने देखा ही होगा कि विंड्स जो है वो कैसे ड्रिफ्ट होता है स्मोक में। जैसे आपने चिमनी में देखे होंगे कि विंड्स कैसे स्मोक को ड्रिफ्ट करती है, फ्लटरिंग फ्लैग्स को कैसे फ्लटरिंग करती है, लीव्स को कैसे रसलिंग करती है ना। तो जैसे भी ये जो कॉमन साइट्स है, तो अगर जैसे स्टॉर्मी डे में आप देखोगे कि जब विंड्स जो है स्ट्रांग हो जाती है स्टॉर्मी डे में, तो हमारा जो अम्ब्रेला है वो अपटर्न हो जाता है, इनसाइड आउट हो जाता है। राइट, ट्रीज भी जो है वो स्वेइंग करने बैठ जाती है। सो इन एक्सट्रीम वेदर ट्रीज में भी अपरूटेड एंड हाउसेस डैमेज। ज़्यादा ही स्ट्रांग विंड हो गई तो उससे ट्रीज जो है वो अपरूटेड हो जाते हैं और हाउसेस भी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ओके, तो विंड्स जब मूविंग करती है करंट ऑफ एयर में, मूविंग करंट्स ऑफ एयर है। ओके, विंड्स आर मूविंग करंट्स ऑफ एयर, दे कैन ब्लो ओवर ए स्मॉल लोकल एरिया और ओवर मच लार्जर रीजन। ओके, तो जैसे एयर सर्कुलेशन, दिस एयर ऑन द मूव इज टर्म्ड एज विंड। ओके, तो ग्लोबल विंड्स जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर को हेल्प करता है पूरी दुनिया में बाय कैरिंग वार्म एयर अवे फ्रॉम द ट्रॉपिक्स एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द पोल्स। तो इस से डिपेंडिंग विंड्स के कोल्ड जो है फोर टाइप्स है। पहला है प्रिवेलिंग विंड्स और परमानेंट विंड्स, सेकेंड सीजनल विंड्स एंड थर्ड लोकल विंड्स एंड लास्ट डिस्ट्रक्टिव विंड्स। सो what is prevailing winds or permanent winds? So a wind that flow concurrently over a large area in a particular direction throughout the year is called permanent winds or prevailing wind. The three main belts or bands of prevailing winds are found blowing on either side of the equator. In the tropics, trade winds blow from northwest in the northern hemisphere and from southeast in the southern hemisphere. In temperate zone, the prevailing winds are cold easterlies blow in the polar region. Prevailing winds are also termed as planetary winds. Then second winds name are seasonal winds. So unequal heating of land and water bodies gives rise to periodic winds that dominate in the particular seasons. They change their directions according to the season. The most important seasonal wind that plays a major role in determining the climate of India is the monsoon wind. The direction of the Indian monsoon, okay, is southwesterly in summer. This is the main source of rainfall in India. Winter is the season of northeast monsoons. Then third, local winds. In some specific area of the world, winds with special characteristics blow in some particular period of the day or year. They blow over limited areas and are of local significance. Hot, dry,
Okay, Lu in northern India during summer. Second, warm dry Chinook in the Rockies of North America after winter. And third, fern down of southern flanks of Alps. And fourth, the dry and cool Hermiton in northwest Africa. Okay, then last wind are destructive winds. Destructive winds, tropical thunderstorms, cyclones, hurricanes, tornadoes. Okay, typhoons are violent local storms that cause large scale destruction. They are associated with high speed wind, thunder, lightning, and rain. They mostly originate over ocean and move inland and cause havoc. Okay. Odisha, located on the eastern coast of India, is prone to cyclones originating over the Bay of Bengal. The super cyclone of October 1999 had caused massive devastation in Odisha and was a major natural disaster. ओके। तो पहला जो प्रिवेलिंग विंड्स है जिसे परमानेंट विंड्स बोलते हैं, तो ये फ्लो जो होती है कॉन्स्टेंटली फ्लो होती है ओवर लार्ज एरिया और पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये फ्लो होती है, इसी वजह से इसको बोला जाता है परमानेंट विंड और प्रिवेलिंग विंड। इसके थ्री मेन बेल्ट्स और बैंड्स आप बोल सकते हो, वो है जो कि ब्लोइंग करते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। जैसे कि ट्रॉपिक ट्रेड विंड्स जो है वो ब्लो होती है नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथ ईस्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में। टेम्परेट जोन में प्रिवेलिंग विंड्स जो है वो वेस्टर्लाइज होती है, कोल्ड ईस्टरलाइज ब्लो होती है पोलर रीजन में। ओके, तो जो प्रिवेलिंग विंड्स है उसे प्लानिटरी विंड्स भी कहते हैं। सीजनल विंड्स जो होती है ये अनइक्वल हीटिंग रहती है लैंड की और वाटर बॉडीज़ की, जिससे पीरियोडिक विंड्स जो है वो डोमिनेट करती है पर्टिकुलर सीजन्स को, और ये चेंज जो होता है वो दे चेंज देयर डायरेक्शंस। सीजनल विंड्स जो है वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। देन लोकल विंड्स जो होती है वो स्पेसिफिक एरिया जो होता है कुछ इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ये जो विंड्स होती हैं ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स से ब्लो होती है सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर। ओके, तो ये लिमिटेड एरियाज में ब्लो होती है लोकल विंड्स। ओके, जैसे हॉट ड्राई लू इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर। नॉर्दर्न इंडिया में समर में ये लोकल विंड्स ब्लो होती है। सेकेंड जो है वार्म ड्राई शिनूक इन द रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका आफ्टर विंटर एंड फॉन डाउन द सदर्न फ्लैंक्स ऑफ आल्प्स। ओके, और जो ड्राई एंड कूल हार्मिटन इन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। डिस्ट्रक्टिव विंड्स जो होती है ये ट्रॉपिकल थंडर स्टॉर्म्स की होती है, जैसे साइक्लोन्स है, हरिकेन्स है, टोर्नाडोस है, टाइफून्स है। ये वायलेंट लोकल स्टॉर्म्स जो होते हैं ये लार्ज स्केल में क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, विनाश करते हैं। इसी और ये एसोसिएटेड होती है हाई स्पीड विंड से। ओके, थंडर से, लाइटनिंग एंड रेन से। तो ये मोस्टली जो इसका उगम जो होता है डिस्ट्रक्टिव विंड्स का, ये कहाँ से होता है, ओशन से होता है, और ये इनलैंड की तरफ मूव होती है और जिससे जो है नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। देन वी विल लर्न अबाउट ह्यूमिडिटी एंड precipitation. Okay, the atmosphere contains moisture in the form of water vapor, which on condensation provides us water in various forms. This water is vital for survival of life on earth. The sun's heat causes moisture from oceans and lakes to evaporate into the air, forming water vapor. The actual amount of water vapor present in the air at a point of time is termed as humidity. Okay, so what is humidity? The actual amount of water vapor present in the air at the point of time is termed as humidity. मतलब एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो होता है वो कहाँ रहता है, एयर में रहता है, और इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ओके, सो हाई टेम्परेचर कॉजेस रैपिड इवेपोरेशन, दिस रिजल्ट इन हायर ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर. The warm air has more capacity to hold moisture. The air becomes saturated
means reaches dew point, reducing the rate of evaporation. As a result, the weather becomes sticky and oppressive. Cold air cannot hold much moisture. As the water vapor rises, it cools and condenses, turned into liquid in the tiny water droplets. Okay, they form clouds. ओके, सो हाई टेम्परेचर जो है उसकी वजह से रैपिड इवापोरेशन होता है और उसके रिजल्ट में हाइयर ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में। जो वार्म एयर जो होती है उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है और वो मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर में क्या करती है, होल्ड करती है। एयर जो होती है वो क्या बन जाती है, स्टैचुरेटेड बन जाती है, रिचेस ड्यू पॉइंट। ओके, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। अगर जैसे इवापोरेशन जो है वो रिड्यूस हो गया तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, वेदर जो है वो स्टिकी और ऑप्रेसिव बन जाता है। कोल्ड एयर जो होती है वो होल्ड मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकती। ओके, एज द वाटर वेपर राइजेस इट कूल्स एंड कंडेंसेस, टर्न इनटू लिक्विड। ओके, एंड इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। जब वो कूल्स हो जाता है तो वो कंडेंसेंस होती है लिक्विड में और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में गिरती है। दे फॉर्म क्लाउड्स। Clouds are visible masses of moisture in the troposphere made up of tiny ice crystals or water droplets. They are so light that they float. The three main types of cloud are cirrus like curl of white hair, uh, cumulus like heap of cotton, and stratus long flat layers. If the clouds continue to absorb more and more moisture, they become saturated. The water droplets in the clouds become bigger and heavier until they can no longer float. They come down to the earth's surface as various forms of precipitation: snow, hail, sleet, or rain. Snowfall occur in colder areas in the form of feathery flakes. Okay, so hail occurs ice pellets when water vapor cools very rapidly. It rises due to fast rising conventional currents and falls down on earth. Sleet is mixture of rain and snow. ओके, तो जो क्लाउड्स जो है वो विजिबल होते हैं मॉसिस ऑफ मॉइस्चर इन द ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर जो हमने इस लेसन में पढ़े कि जो लेयर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने पढ़े लेयर्स के बारे में। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो है ये अबाउट 30 किलोमीटर जो होता है, 8 किलोमीटर ओवर पोल्स टू 18 किलोमीटर। तो वो जो लेयर कहलाता है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर जो है उसमें रहता है क्लाउड्स विजिबल होते हैं और इसमें जो है वो क्या बनते हैं, टाइनी आइसिस क्रिस्टल्स बनते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं एंड दे आर सो लाइट। वो इतना लाइट होता है कि वो फ्लोट भी करते हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, जैसे सीरस जो होता है, ये जो क्लाउड्स होता है ये कर्ल और वाइट हेयर के जैसे दिखाई देता है। देन सेकेंड इज कुमुलस जो होता है वो हीप ऑफ कॉटन की हीप के जैसे दिखाई देता है कि मानो कॉटन की हीप है। देन थर्ड वाला जो है वो स्ट्रेटस, ये लॉन्ग फ्लैट रहता है लेयर्स के जैसे। अगर ये क्लाउड्स जो है कंटिन्यू एब्जॉर्ब करते हैं मोर एंड मोर मॉइस्चर को तो वो क्या बन जाएंगे, स्टैचुरेटेड बन जाते हैं। ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो क्लाउड्स को बनाता है बिगर और heavier until they can go longer float, and then they come down to the earth surface as various forms of precipitation, जैसे कि स्नो के रूप में नीचे आता है, हेल, स्लीट और रेन। स्नोफॉल जो है अकर्स होती है कोल्डर एरियाज में इन द फॉर्म ऑफ फीदरी फ्लैक्स। ओके, हेल अकर्स होते हैं एज आइस पेलेट्स में आइस के जैसे हेल गिरती है, बिल्कुल बर्फ के जैसे। व्हेन वाटर वेपर कूल वेरी रैपिडली, जब वाटर वेपर जो होता है एटमॉस्फेयर में वो रैपिडली कैसे होता है, कूल होता है, तब जो है हेल्स बनती है। इट राइजेस ड्यू टू फास्ट राइजिंग कन्वेंशनल currents. Okay, then the most common
sorry, the most common form of precipitation is rainfall. Rainfall is precipitation in liquid form as tiny drops of water of various sizes. It provides us fresh water vital for survival of living beings. It is the main source of groundwater. Based on the mechanism of their formation, rainfall can be classified into three types: conventional rainfall, relief rainfall and cyclonic rainfall. ओके, तो जो मोस्ट कॉमन जो होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है प्रेसिपिटेशन का वो है रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल ऐसा प्रेसिपिटेशन है जो लिक्विड फॉर्म में टाइनी ड्रॉप्स में टाइनी ड्रॉप्स रहता है वाटर का वेरियस साइजेस में, और वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेश वाटर, और वो वाइटल रोल निभाता है लिविंग बींग्स के लिए, और ये मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर होता है रेनफॉल. ओके, तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ देयर फॉर्मेशन, रेनफॉल के तीन टाइप्स हैं: कन्वेंशनल रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल एंड साइक्लोनिक rainfall. Okay, so about conventional rainfall, relief rainfall and cyclonic rainfall we will learn in next period. Okay, bye.